Hello everyone, welcome, and today we are going to discuss about logistic regression, predicting probabilities in classes. So basically what logistic regression means, why it is important in our journey in machine learning, and how it does, like basically the fundamentals behind doing the predictions of this thing. So basically let me just give you a quick overview about this thing. So logistic regression is a classification model. It predicts probabilities. Okay, so basically what it is a classification model, and what it does, it predicts probabilities. Okay, and then it converts probabilities into classes. Okay, so आज हम बात करेंगे जो है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में. लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या, क्यों ज़रूरी है हमें ये जानना, हमारी मशीन लर्निंग की जो ओवरऑल जर्नी है उसमें इसका कितना रोल है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं. So what logistic regression does, basically what is the function of logistic regression? So today we are going to learn this thing as well. So basically what it does, it predicts probabilities. It never gives a direct value. Okay, it outputs number between 0 and 1. It is widely used in classification tasks, and the decision threshold is usually 0.5. And what it does, it converts probabilities into classes. So if we say basically let me draw a simple graph for you. So basically this is a sigmoid function. Okay, and here we are at 0 and 1, and here also we are at 1. This is our input and this is our output. So there will be a threshold. Let's say this is the threshold, basically 0.5. At 0.5, this is the basically boundary for this thing. Okay, let me draw it in different colors so you don't confuse it with another thing. So basically what it does, at 0.5 and at 0.5 here, this is basically a threshold for this thing. So anything above that is into class 1, and anything below that 0.5 marker is class 0. ओके, तो यहाँ पे आज हम जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता क्या है इसके बारे में जानेंगे. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली क्या करता है, हमारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्रिडिक्ट करता है. ये है हमारा एक क्लासिफिकेशन मॉडल. ठीक है, ये कभी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है कि कोई चीज़ है या नहीं है. जैसे अगर हम बात करें बारिश होगी या नहीं होगी. ठीक है, जैसे हमारा वेदर फोरकास्ट हो गया, उसमें आता है कि आज बारिश होने की आशंका है. बेसिकली दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बारिश हो सकती है. यहाँ पे कितने बारिश होगी, कितने बारिश नहीं होगी, वो ये प्रिडिक्ट नहीं करता. या तो ये बारिश होगी या तो ये बारिश नहीं होगी, या तो ईमेल स्पैम है या तो नहीं है. ठीक है, ये नहीं बताता कि कितने परसेंट स्पैम है या कितने परसेंट स्पैम नहीं है. ठीक है, ये हमेशा वैल्यूज़ को 0 और 1 के बीच में ही प्रिडिक्ट करता है. ठीक है, हमेशा इसका आउटपुट 0 से 1 के बीच में ही रहेगा. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज़ होता है मैक्सिमम. और इसका जो डिसीजन थ्रेशोल्ड होल्ड है, बेसिकली ये यूजुअल जो है वो 0.5 होता है. ठीक है, और ये क्या करता है, हमारी प्रोबेबिलिटीज़ को क्लासेस में कन्वर्ट करता है. जैसा कि मैंने अभी आपको वो ग्राफ में बताने की कोशिश की कि ये क्या करता है. जैसे आपका ये मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0.5 हो गया, ये 0 और ये 1. सेम यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे कितना, 1. ठीक है, अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे इसका क्या हो गया, डिसीजन थ्रेशोल्ड. अब जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन बन रहा है वो कुछ यूं जा रहा है. ठीक है, हमारा कुछ यूं जा रहा है.
अब जितनी वैल्यूज 0.5 के ऊपर हैं उसको वो क्या बोलेगा, क्लास 1, और जितनी वैल्यूज हमारे उसके नीचे हैं 0.5 के उसको क्या बोलेगा, क्लास 0। ठीक है, मतलब यही बोल रहा है कि या तो ये चीज़ है या तो ये चीज़ नहीं है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, why not use linear regression for classification? So basically there is a simple reason for that. When we are talking about linear regression, it most of the time gives output that is outside 0 to 1 range, and probability can be like why we are taking 0 and 1. Let me just describe you this thing, then we can think like we can move ahead with that. Okay, so basically if we are talking about something is true or false, so whether it can be there, there are only two situations here, there is no gray area, either that is true or that is false. So like if let's say let's take an example for like anything, whether that is that thing is useful for you or that is not. There is no in between like I can use 50%, no. So on those 50% parts where I can use that and then afterwards I cannot, no, this is not the case here. So basically what it does give our output between 0 to 1. 0 means it is not, and 1 is exactly the same thing which you are looking for. Okay, so this is basically the question of right or wrong, true or false. Okay, spam or not spam, and whether it is going to rain or it is not going to rain. It is not designed for the categorical labels. It doesn't map cleanly to the probabilities, and most of the time it fails on the boundary problems. तो यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन को क्यों यूज़ नहीं करते क्लासिफिकेशन के लिए? तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी जो आउटपुट है वो 0 और 1 की रेंज से बाहर देता है। ठीक है, और ये कैटेगोरिकल लेवल के लिए है भी नहीं। ठीक है, और ये हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनको बहुत क्लीन तरीके से कभी भी मैप नहीं कर पाता, और बाउंड्री प्रॉब्लम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो आपसे बात की 0 और 1 की, 0 एंड 1 क्यों बोला मैंने? 0 और 1 बोला इसलिए क्योंकि या तो कोई चीज़ होगी या तो या तो नहीं होगी। ठीक है, या तो कोई मेल स्पैम है या तो स्पैम नहीं है। ठीक है, या तो कोई चीज़ सही है या तो कोई चीज़ गलत है। यहाँ पे कोई ग्रे एरिया नहीं है कि नहीं ये 50% इसका सही है बाकी ख़राब है तो हम 50% यूज़ करेंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है यूज़ नहीं होता है। अच्छा, सिग्मोइड फंक्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, so basically the sigmoid function is the like magic behind the logistic regression. So you can remember the formula of this thing, like sigmoid z is equal to 1 by 1 plus 8 power minus z. Okay, this is the formula of the like sigmoid function, and it takes any input. Okay, like let's say mm, let's say we are taking any value like e to power minus z, we have taken it as whatever you can think, and the sum comes around 10. Still it is giving us in values in 0.1. So basically it is in the range of 0 to 1. Okay, so any value, any imaginable value you can think of, it will squish it into the range of 0 to 1, and then it will help us to predict the like basically it will do the predictions, and it is interpretable as probability. तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला सिग्मॉइड फंक्शन का।
ठीक है। सिग्मा जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू पावर माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लेके आते हैं यहाँ पे जी की। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके आते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके आएंगे, ये सारे के सारे, जैसे आप ये मान के चलो कि 1/, अगर यहाँ पे 1000 भी हो जाता है ना, या 10,000 हो जाता है, तो भी ये क्या देगा, 0.0001। ठीक है, या फिर 0.001, 0.1। तो ये सब कुछ स्क्विश करेगा जो 0 से ज़्यादा हो, और 1 से ज़्यादा कभी जाने नहीं देगा। 1 से ज़्यादा क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वैल्यू यहाँ पे 1/1 होती तो वो 1 है, 1/2 होती तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/0.5 हो नहीं सकता। क्यों 1/0.5 इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अब इस फंक्शन में आप देखिए, मैं एक बार बनाता हूँ, सिग्मा ये 1 प्लस ई पावर माइनस जी। ठीक है, 1 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप ये सोचो कि 1 जो है यहाँ पे वो हमेशा रहेगा, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो 1 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना आपका, तो कभी भी ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो सारी सारी की सारी वैल्यूज़ को ये 0 to 1 के बीच में क्या करता है, स्क्विश आउट कर देता है। ठीक है, और इसी को हम इंटरप्रेट करते हैं ऐसा, कैसे, प्रोबेबिलिटी की तरह से। डिसीजन बाउंड्री, so what is decision boundary? So basically if the probability is 0.5, that is class 1 as discussed in the first slide, and if the possible probability is below 0.5, that is in class 0. The boundary can be a line, a plane, or a hyperplane, basically with the higher dimensions. तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे मैं एक बना के आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो थ्रेशोल्ड है ना, हम अगर इसको थ्रेशोल्ड अपना मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 0 है। ठीक है, इस इन वैल्यूज़ पे आप नहीं जाइएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक बना समझाने के लिए आपको है। हमेशा जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 और 1 के बीच में होंगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे 0 और 1 के बीच में होंगी। ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और यहाँ पे हम जो बेसिक मतलब ये मान के चलते हैं कि 50% चांस लेके चलते हैं। तो अब ये समझिए कि 50% चांस लेने के पीछे का कारण ये है कि या तो कोई चीज़ होती है या तो कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं भूत होता है, कुछ लोग कहते हैं भूत नहीं होता है। ठीक है, तो जो मानते हैं भूत होता है उनके लिए 50% चांस है भूत होता है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए 50% चांस है कि भूत नहीं होता है। ये बेसिकली 100% चांस है। जो मानते हैं उनके लिए 100% भूत होता है, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए 100% भूत नहीं होता है। ठीक है, या तो कोई मेल स्पैम होता है या तो कोई मेल स्पैम नहीं होता है, या तो कोई चीज़ सही होती है या तो कोई चीज़ गलत होती है। जैसे अभी आज के टाइम पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कई लोग प्रमोट करते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों को जो नहीं करना चाहिए उनको कूल बनने के चक्कर में। बेसिकली वो चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, ये सिर्फ दो ही क्राइटेरिया होते हैं, या तो आप सही बोल रहे हो या तो आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रे एरिया जैसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 0.5, मतलब ये जो हम इसको मान के चल रहे हैं अपना थ्रेशोल्ड, अगर इसके ऊपर है ये, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा क्लास 1 है। ठीक है, इससे नीचे है तो हमारा क्लास 0 है। अब हम क्लास 1 को इधर पॉजिटिव मान के चल सकते हैं या फिर नेगेटिव मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मॉडल पे डिपेंड करता है कि अगर हम उसके ऊपर जा रहे हैं तो उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो like that is a completely different thing, but you can interpret in it in your own way. You can interpret that in your own way. तो अगर हो सकता है कि हम ये मानते हैं अगर एक के करीब जा रहा है तो वो गलत है, एक के नीचे है मतलब 0 के करीब आ रहा है तो वो सही है, या फिर 0 के करीब आ रहा है तो वो गलत है, एक के करीब जा रहा है तो वो सही है। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं एक। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड इन, देखिए, spam detection, fraud detection, customer churn prediction,
disease diagnostics and click through prediction on ads. बेसिकली स्पैम डिटेक्शन आपने देखे होंगे आपके ईमेल पे, ठीक है. यू मस्ट हैव सीन दिस ऑन योर ईमेल वेदर समथिंग इज स्पैम और नॉट. Fraud detection happens on some different level. Okay, like if we are talking about a bank, let's say this is their internal system. So what happens, like basically there are some algorithm which, like, they have historical data and human, like basically it is complete study of human behavior. अगर हम बात करें तो उन्होंने ह्यूमन के पूरे बिहेवियर को स्टडी करके एक एल्गोरिदम में डाला है. क्यों? हमारा जो एक्सपेंडिचर का बिहेवियर होता है, या फिर हमारा जो एक्सपेंडिचर का बिहेवियर है, ठीक है, हमारे जो पैसे विड्रॉल का बिहेवियर है, ठीक है, वो सबको उन्होंने एल्गोरिदम में चेंज किया. और वो चीज़ उसमें उन्होंने अपने सिस्टम को सिखाई कि अगर एक्स वाई जी कंडीशन मेट हो रही हैं देन इट इज़ गुड. अगर एक्स वाई हो रही हैं लेकिन जी नहीं हो रही है तो ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है. और यहीं पे हमारा सिस्टम डिटेक्ट करता है चीज़ों को और रोकता है. जैसे आप मैं बात करूँ, क्योंकि मैं कभी एक्सिस का एक क्रेडिट कार्ड यूज़ किया करता था. मेरे जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे, ठीक है, वो इमीडिएटली पास नहीं होने देते थे कभी भी, ठीक है. जैसे अबाउट 40 to 45,000 का अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया एक बार में, वन गो में, सीधा सा वो मेरे को मेल भेजते थे कि भैया आप इसको यहाँ पे अप्रूव करो, अदरवाइज हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने कभी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया नहीं था, ठीक है. तो उनके एल्गोरिदम के हिसाब से मैं हमेशा छोटे ट्रांजैक्शन करता था. तो उनके लिए थे छोटे छोटे कर रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट लाइक सस्पिशियस. और मोस्टली जो ट्रांजैक्शन होते थे ट्रस्टेड वेबसाइट पे होते थे, ठीक है. लेकिन अब जैसे मैं कोई कोर्स खरीदने के लिए जा रहा हूँ और एक इंटायरली न्यू वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें मैं कभी गया नहीं, और उसमें एक साथ ही मैं अगर 50,000 60,000 ऐसा कोई अमाउंट डालूँ और उसको विड्रॉ करने की कोशिश करूँ या फिर उसका सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करूँ, तो ये एक अलर्ट भेजेगा सिस्टम को, यार यहाँ पे ये शॉपिंग करता नहीं था, आज क्यों आया है, ठीक है. तो उसके बाद उनका इंटरनल सिस्टम अपने आप मुझे नोटिफाई करेगा कि क्या तुमने किया है क्या, ठीक है. तो हमारा फ्रॉड डिटेक्शन कुछ ये हो गया. कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, ठीक है, या कस्टमर का बेसिकली कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं उस चीज़ को. और जैसे बेसिकली अगर हम आप अपने मार्केट लोकल मार्केट की बात करेंगे, ठीक है, लोकल मार्केट की अगर बात करें तो सीजनल ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. सीजनल होती हैं कैसे? देखो, शाम का टाइम सबके लिए बेहतर होता है, ठीक है. इस टॉपिक में थोड़ा समय लग सकता है, बट शाम का टाइम ऑलमोस्ट हर मौसम में ही अच्छा होता है, बरसात को छोड़ के, ठीक है. किसी को बरसात में शाम को घूमने का मन नहीं करता अनटिल अनलेस बारिश नहीं हो रही हो, ठीक है. अब ठंडी में बात करें तो ठंडी में होता है कि मार्केट हमारा जल्दी बंद होता है. क्यों? क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कस्टमर घटना चालू होता है. तो हमारे जो मार्केट का बोलते हैं चंका मंका या फ्लैशीनेस या चमक दमक, वो जल्दी ख़त्म होती है. गर्मी में यही चीज़ देर तक चलती है, देर से शुरू होती है. क्यों? क्योंकि लोगों को हीट से बचना होता है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा लेट निकलते हैं, ठीक है. ये भी हमारा एक डेटा ही है, ठीक है. डिजीज डायग्नोसिस कुछ ऐसा आप ये मान के चलो कि हमारे पास सिम्टम्स हैं, ठीक है. हमने ये एल्गोरिदम बना के रखा, ठीक है. हमने अपनी इनपुट दी एक्स वाई जी, ठीक है. एक्स वाई जी दिए, एक्स कंडीशन मेट हो रही है, वाई कंडीशन मेट हो रही है, जी कंडीशन मेट हो रही है. देन अगर ये तीनों कंडीशन मिल रही हैं, ये तीनों कंडीशन मैच हो रही हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, बीमार है. और अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो नहीं है, ठीक है. तो हमारा डिसीज डिटेक्शन में ये कुछ इस प्रकार से काम करता है. सी टी आर ये एड्स के लिए है, ठीक है. तो बेसिकली हर एक जगह पे इन एल्गोस का यूज़ किया जाता है. हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन लर्न्स, सो बेसिकली हाउ इट लर्न्स,
It is same idea as linear regression but optimized for classification. So basically what you do, you multiply feature with weight, then applied sigmoid function, then calculate the probability, compare with the actual label, compute loss, update weights with gradient descent. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले, ये बेसिकली इसके में कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी लीनियर रिग्रेशन के ही तरह से ट्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो फीचर्स हैं, ठीक है, फीचर क्या होते हैं अभी आप बोलिए नहीं, फीचर हमारे होते हैं हमेशा इनपुट, ठीक है, इनपुट इनटू वेट्स, ठीक है, इनपुट इनटू वेट्स। फिर यहाँ पे हमने सिग्मोइड फंक्शन लगाया, कौन सा, सिग्मा जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻⁻z, ठीक है, हमने ये लगाया। इसके बाद जो वैल्यू हुई उसको स्विच किया 0 to 1 के बीच में, यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, ठीक है, ये हमारे 0 और 1 के बीच में कितना 0 के पास में है या फिर कितना 1 के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, क्यों, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेटा हमेशा रेफरेंस के लिए रखते हैं, ठीक है। तो हमने हिस्टोरिकल डेटा या हमारे जो रेफरेंस आंसर्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो परीक्षा की कुंजी है, उनसे हमने कर लिया कैलकुलेट, जितना डिफरेंस आया, ठीक है, अगर लॉस आया तो हमने वो कैलकुलेट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपने वेट्स और जो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट है उनको अपडेट किया और ये चीज़ें फिर से रिपीट की, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, logistic regression uses binary cross entropy because it measures probability error effectively. The properties of BCE are strong penalty for confident wrong predictions, perfect for probability based model. तो यहाँ पे क्या है, हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी मेथड का यूज़ करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी एरर को बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से मेज़र करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी है कि भैया अगर कॉन्फिडेंटली आप गलत बता रहे हो, कि अगर कोई चीज़ नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं भाई यही है, तो फिर उस हिसाब से आपको देगा भी, देख के दे तुम गलत कर रहा है, ले तुम, ठीक है। तो अगर आपने गलत उत्तर दिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं सर आपको क्या ही पता है, मैं बताता हूँ, तो उसी हिसाब से वो टीचर फिर आपको पीनलाइज भी करता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल इनके लिए बड़ा अच्छा होता है, परफेक्ट, ठीक है। Decision boundary intuition. A logistic regression classifier draws a best line that separates classes by probability. If the data is clearly separable, there is a sharp boundary, and if there is overlapping, then more blended probability regions. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिसीजन बाउंड्री इंट्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर जो है हमारा, वो एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। अगर डेटा बिल्कुल क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है, तो हमारी जो बाउंड्री बनेगी वो बड़ी शार्प बनेगी, बहुत क्लियर बनेगी, जैसे ये, ठीक है। लेकिन अगर यदि नहीं किया जा सकता तो हमारी बाउंड्री बड़ी ही ब्लेंडर बनेगी, मतलब समझ में नहीं आएगा, वो दोनों पार्ट्स को कवर करेगी, ठीक है। व्हेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल वर्क्स वेल, जब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, देन व्हाट हैपेंस, data is roughly linearly separable. You need interpretable models, speed matters, small to medium sized data set and feature don't interact too unpredictably. तो यहाँ पे बात ये है कि हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है अगर वो बहुत अच्छे से काम करता है तो भैया कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो क्या, हमारा जो डेटा है वो रफली मतलब एक मोटा मोटी तरीके से लीनियरली तरीके से सेपरेट किया जा सकता है क्लास ए और क्लास बी में, ठीक है। अब आपको इंटरप्रेटेबल मॉडल की जब ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है पड़ती है, ठीक है, तब ये अच्छे से काम करता है। स्पीड आपको मायने रखती है, तो ये अच्छे से काम करता है। स्मॉल टू मीडियम डेटा साइज है, लाइक स्मॉल टू मीडियम डेटा साइज है, बहुत अच्छे से काम करेगा।
और फीचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो। बेसिकली हमारे जो इनपुट्स हैं वो ना बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो, तो ये हमारा मॉडल बहुत अच्छे से काम करता है। एंड व्हेन इट फेल्स, so basically it fails when there is a deep non-linear pattern, complex decision surface, high feature interaction, image, audio or raw text task, and when linear boundary is too simple. तो ये जब फेल कब हो जाता है, जब हमारे पास नॉन लीनियर पैटर्न होते हैं और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के। ठीक है, हमारी जो डिसीजन सरफेस है, बेसिकली हमारा जो डिसीजन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो यस और नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। हाई फीचर इंटरेक्शन, ठीक है भैया, यहाँ पे इनपुट तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ मतलब तुम्हारे इनपुट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स है, सीधी सी बात। ठीक है, इमेज, ऑडियो और रॉ टेक्स्ट डेटा, इसमें ये फेल हो जाता है। ठीक है, और लीनियर बाउंड्री अगर बहुत ही सिंपल है तो ये फेल हो जाता है। ठीक है, और व्हाट लॉजिस्टिक रिग्रेशन डस, तो बेसिकली ये हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आप देखो प्रिडिक्टिंग कस्टमर चर्न। ओके, फीचर में इंक्लूड सपोर्ट टिकट काउंट, मंथली यूजेस, प्लान टाइप, एंड देन कम्स द पेमेंट बिहेवियर, output probability of customer will churn, model decides 0 stay 1 likely churn। ठीक है, तो ये हमारा एक सीधा सा कुछ एक एग्जांपल है कि हम कस्टमर को, हमारे प्रिडिक्टिंग कस्टमर, हमारे कस्टमर चर्न है, हमको प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे फीचर, दैट मीन्स इनपुट, ठीक है, यहाँ पे हमारे इनपुट क्या होंगे, इनपुट हमारे ये है, ये तीन चीज़ें, सपोर्ट टिकट काउंट, मंथली यूजर्स, प्लान टाइप। आप ये मान के चलो कि किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट बिहेवियर, आउटपुट प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल चर्न, मॉडल डिसाइड्स, मॉडल डिसाइड यहाँ पे क्या करता है, 0 के आसपास रहेगा तो वो कस्टमर रुकेगा, 1 के पास होगा तो मोस्ट प्रोबेबली खेल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक कुछ छोटा सा साधारण सा एक उदाहरण था। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगले सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।